Today, we will begin with a fresh subject, that is auditing. Now, we already learned that what is accounting, what is taxation, costing, economics. Now, we will be starting with auditing. Now, if you think that auditing is all about sums, then my dear students, it's wrong. Auditing is a practical subject without sums. It talks about the practical happenings in big organization and corporates. Now, why is this auditing required? See, the word audit. Audit comes from a Latin word audere, which means to hear. If you see this image, I have shown a graphics of a ear from which the ear is listening. So this is nothing. Audit in initial days, what used to happen where there was no technology and the books of accounts had to be checked. So what used to happen is the outsider, that is the professional, used to visit the organization and ask, tell me what are your books of accounts, is it properly maintained or not. And so what, the auditor asks the question and he has to listen to the staff or the employee of the organization. So initially audit was was more known about hearing, but nowadays with the change in technology, audit has a complete different definition. Okay, so now I'll give you a small example which will distinguish between what is a company, auditing and auditor. A very basic example. Suppose there is a company, okay, for which runs on a very large scale, and it also requires इट्स वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन टू बी चेक. मतलब जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर कोई तो सुपरविजन रहना चाहिए. सम आउटसाइडर शुड कम and check the accounts of the order, that whether they are up to date or not. So for this purpose, the company hires a very well qualified professional, which is to be, as by law, is to be a chartered accountant. So that chartered accountant is no one but he's also an auditor, right? So what is an auditor? Who is he? A person who is appointed for checking the accounts of this company is known as the auditor. Now this auditor basically comes into this organization. He is appointed by this company and by law he will be checking the accounts. Now if you see the image of audit, you can see that this person is doing what? The work carried out by this auditor for checking the accounts is audit. If you can see, he's having a pen and paper and is checking the documents, the vouchers that he is given by the company. So this is what the work carried out for checking the accounts is audit. Now, auditing is what? The system or process of checking such accounts is auditing. ये जो पूरा सिस्टम साइकिल है, द एंटायर फेज, दिस इज व्हाट ऑडिटिंग. सो नाउ इट इज़ क्लियर दैट एक कंपनी रहती है जहाँ पे एक ऑडिटर आता है जो कंपनी की मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, सो दैट उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, कोई फ्रॉड या एरर नहीं हो रहा है. सो फॉर दिस पर्पज एन आउटसाइडर इज अपॉइंटेड टू चेक सच ट्रांजैक्शंस. He checks the books of accounts, vouchers. He does examination, in-depth examination of the internal control of the company, and this entire thing को हम auditing process बोलेंगे. Now let's learn about the basic characteristics of auditing. Auditing का basic चीज़ हमने सीख लिया है. Now इसका characteristics क्या बोलता है हमें? Okay. So now auditing is nothing but it is the examination of the recorded transaction. You can see there is some kind of transaction and there is a person whom it is, I'm assuming in the GIF that it is an auditor. He is doing what? He is doing an examination of the transactions recorded by the company. Now, such examination is conducted with the help of vouchers, evidences, information and explanation. कंपनी जो रहती है वो ऑडिटर को वाउचर्स देती है. सपोज यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का वाउचर दे रखा है,
तो दिस इज़ व्हाट कि इसको लेके ऑडिटिंग करेगा ऑडिटर. ओके, नॉट ओनली दिस वाउचर्स बट सम और एविडेंस भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. नाउ third point, such examinations conducted on the basis of those vouchers and evidence which are used for writing the books of accounts and recording various transactions. Now if you can see, एक journal entry दी है. अभी जो हमको वाउचर मिला था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, हम उसी की बेसिस पे ही जर्नल एंट्री करनी है. तो एज एन ऑडिटर यू हैव टू चेक दैट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जो है इट इज़ मैचिंग विद द जर्नल एंट्री और नॉट. Now let's talk about analytical tool. See, analytical tool is nothing but it is using external procedures to obtain audit evidence by the auditor. Suppose ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किए जाए, सो ही कैन ऑब्टेन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, बाहर वाले लोगों से पूछ के कंफर्म कराए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है. लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही ले लेते हैं. इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस वाउचर, द ऑडिटर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट कि आपके पास ये कंपनी का ये वाउचर नंबर का अमाउंट है, इज़ दिस करेक्ट और नॉट. सो एनालिटिकल इज़ नथिंग बट यूजिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बाय एन ऑडिटर. Such an examination is conducted systematically and scientific basis, and proper care and diligence as well as analytical approach is essential for carrying out such an examination. Now, next talking about independency. To remember, I have put an image of the map of an India with Independence Day. So this would be a kind of memory technique to remember in order. Okay, independency is what? एक ऑडिटर जब अकाउंट्स ऑडिट करता है ही शुड मेक श्योर कि मैनेजमेंट या उस स्टाफ कोई एम्प्लॉय का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके डिसीजन पे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई रिलेटिव हो और रिलेटिव आके उसको बोलेगा कि भाई ऑडिटर साहब यू डोंट चेक दिस प्लीज़ बिकॉज we have good relation, let's maintain a good relation, for that purpose you skip such transactions. So this is what इन्फ्लुएंसिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंसी. सो हम एक ऑडिटर को बोला जाता है कि एज बाय लॉ कि तुमको अपनी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना है एंड शुड नॉट लिसन to any of the employee if they tell to skip such transaction. So independency plays a very important part in auditing. Now if we talk next about errors and fraud. See, obviously कुछ errors जायज़ है हर ऑर्गेनाइजेशन में, बट फ्रॉड वी कैन सी आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में. सो द ऑडिटर मस्ट मेक श्योर कि फ्रॉड और एरर प्रॉपरली डिटेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज ऑल्सो बोथ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस. नाउ इफ़ यू सी कि वाई इज ऑडिटिंग एन आर्ट. आर्ट क्यों है ऑडिटिंग? क्योंकि इट इज़ अ ब्यूटिफुली सिस्टमैटिकली डिज़ाइंड प्रोसेस फॉर checking the transaction. And why is a science? Because the process is logical. आप देखो कि अगर ऑडिटिंग एक ऑडिटर रहता है तो वो कोई भी प्रोसीजर्स अपनाएगा टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल ही यूजेस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड टू चेक द ट्रांजैक्शंस. मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो, सो व्हाट विल द ऑडिटर डू? बिकॉज उसके पास टाइम लिमिटेड रहता है, वो सैम्पलिंग बेसिस पे एविडेंसेस चेक, ट्रांजैक्शंस चेक करेगा. ही वॉन्ट चेक द इंटायर ट्रांजैक्शंस रैंडमली. कोई एक एक ट्रांजैक्शन उठा के ही विल चेक दैट हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है. अगर उसको कुछ डाउट लगा देन ही माइट हैव टू चेक द एंटायर ट्रांजैक्शंस. सो दिस इज व्हाट अ सिस्टमैटिकली डिजाइन्ड प्रोसेस. सो इट इज ऑल्सो अ साइंस. नाउ ऑडिटिंग is used for income statement and balance sheet statement. Why is this? Because एक ऑडिटर जो रहता है उसका मेन काम रहता है सिर्फ एविडेंसेस वाउचर्स लेके ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना नहीं होता, but he should also verify that the P&L account is and balance sheet has been drawn up as per the Companies Act 2013. मतलब एक एक्ट है कंपनीज का जो हर कंपनीज को फॉलो करने रहते हैं. देयर आर मेनी अदर लॉज लाइक लेबर लॉज होते हैं,
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड मैनी लॉज दैट दे नीड टू फॉलो. लेकिन जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दे मस्ट बी मैच्ड एज पर द कंपनीज एक्ट रूल. नाउ ट्रू एंड फेयर व्यू, एक ऑडिटर जो रहता है वो अपनी बुक्स, अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करता है मैनेजमेंट को, ही विल बी प्रोवाइडिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट ट्रू एंड करेक्ट व्यू. सी आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है. ट्रू एंड फेयर व्यू इज़ व्हाट कि तुम्हारी एक ऑडिटर जब ट्रांजैक्शंस चेक करता है, वाउचर्स वेरीफाई करता है, तो वो जो वाउचर्स हैं दे आर फेयर इनफ. समटाइम्स इट हैपन्स कि थोड़े बहुत अप्रोक्सीएशन और एस्टिमेशंस रॉन्ग हो सकते हैं, तो दैट इज़ लाइक नेग्लिजिबल, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन इफ़ ही इज़ गिविंग अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू मीन्स व्हाट कि जो वाउचर आपके पास है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो अमाउंट शुड बी द सेम एज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर वो सेम टू सेम रहे तो ही कैन गिव ट्रू एंड करेक्ट व्यू. करेक्ट व्यू इज़ व्हाट कि वो 100% सही है. नाउ ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों देता है ऑडिटर? टू प्ले ऑन अ सेफर साइड. क्यों? क्योंकि वो जब ट्रांजैक्शंस चेक करता है, ही इज़ नॉट चेकिंग द एंटायर ट्रांजैक्शंस, ही इज़ चेकिंग देम ऑन सैम्पलिंग बेसिस, राइट. तो ही इज़ नॉट चेकिंग द एंटायर ट्रांजैक्शन. तो कल को उठ के अगर ऐसा हुआ कि जो ट्रांजैक्शंस ऑडिटर ने स्किप कर दिया, राइट, तो उस पर कुछ एरर या फ्रॉड हो जाए, देन what will the company do? They will sue the auditor कि भाई तुमने ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया. सो द ऑडिटर क्या करता है? टू प्ले ऑन अ सेफर साइड, ही विल ऑलवेज गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नॉट अ ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन ऑन द रिपोर्ट दैट ही प्रेजेंट्स टू द मैनेजमेंट. नाउ इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक ऑडिटर जो है वो ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से परफॉर्म करें. उसको कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं, कुछ इशू नोट्स दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से ही नीड्स टू चेक द वाउचर्स, examination of books of accounts and audit the entire process of the organization. Moving further to the next topic, that is principles and techniques of auditing. Now what happens is sometimes the organization do not provide proper information to the auditor. तो auditor क्या बैठा रहेगा? नहीं, he will prepare some techniques, auditing techniques of his own to obtain such evidences, to obtain such information and vouchers so that he can properly verify the transactions. Each auditor adopts the system best suited for a particular organization. हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम अलग रहता है, सो अकॉर्डिंगली उसका जो टेक्निक रहता है, इट्स नॉट सेम कि अगर एक्स कंपनी का ये ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हमने अपनाया तो फिर वाई कंपनी का भी हम यही auditing procedures अपनाएंगे. No, every company is different in its own terms, so the auditor must use its own technique of auditing in different organization for which he audits. Now what are principles and techniques? It is nothing but it is the method adopted by the auditor for carrying out the work. इट इज़ वेरी ट्रू कि किसी भी काम को अगर हम सिस्टमैटिकली काम करें, एक प्रोसीजर बना के काम करें, कोई टेक्निक्स अपनाएं, तो द वर्क विल बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली कंप्लीटेड, राइट. सो द ऑडिटर डज द सेम थिंग while he goes for an audit. Now starting with the first point, that is verifying the correctness of the recorded transaction. This is the first thing. See, एक ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने जाता है. सो व्हाट ही विल डू कि जितना ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, ही विल वेरीफाई कि वो करेक्ट है कि नहीं. कैसे? विद द कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, he will verify the correctness of the value of assets and the properties. मतलब एक एसेट की अगर वैल्यू हमको डिसाइड करना है, वी विल चेक कि एसेट की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, जो एग्रीमेंट बना था एसेट खरीदने का उसमें क्या अमाउंट है, मतलब वो हायर परचेज पे लिया है और इफ़ एनी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लिया है, एवरीथिंग. सो विल चेक इट्स वैल्यू. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वैल्यू जो एसेट है
वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, और इट इज़ जस्ट द डमी फेक वाउचर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज शोइंग. Thirdly, it will verify the correctness of the liabilities and debts of business. सपोज ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स कि वो आके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें, तो कंपनी क्या रहती है कि लाइबिलिटीज़ की अमाउंट जो रहती है वो डिफ्लेट कर देती है, यानी कम कर देती है. तो द ऑडिटर मस्ट चेक कि जितने लोन्स और बोरोइंग्स उन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो वो एग्जैक्टली अच्छे से दिखाया है कि नहीं दिखाया है. देन वेरीफाइंग दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव एंड और नॉट. सी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिग, स्मॉल, मीडियम, इन एवरी टाइप्स ऑफ यूनिट्स एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड रहा रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिस्टम कि ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट साइन इन द ऑफिस बाई 10 o'clock. ओके, कोई 10 o'clock से लेट आया तो नहीं चलेगा, मैक्स 10:15 और 10:30, राइट. सो व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज द ऑडिटर मस्ट सरप्राइजिंगली चेक कि ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, मतलब सब एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. नॉट ओनली द टाइमिंग चेक बट ऑल्सो द अदर चेक्स कि जो कैश बैलेंस है, जो लिक्विड कैश है ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सेफली लॉकर में रखा है कि नहीं, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा कि ही विल विजिट द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली एंड गिव द सरप्राइज चेक टू द ऑर्गेनाइजेशन for knowing the internal control system. Then, in vouching the journal and subsidiary books, जो journal is what कि जो journal entries organization करती है वो. Then subsidiary books is what कि जो ledger posting का काम रहता है वो. And nowadays everything is obviously done in tally. बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रीवियस डेज, तो जर्नल एंट्रीज बनती थी और एक लेजर बुक भी रहता था. तो ऑडिटर का काम था कि जो जर्नल एंट्रीज का बुक है उसके ट्रांजैक्शंस जर्नल लेजर बुक से मैच होता था कि नहीं होता था. Nowadays everything is done in online software of Tally ERP, so there is no need of this part. Next, income and auditing, allocating the income and expenses. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऑडिटर जो रहता है ही मस्ट मेक श्योर कि जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल इनकम को कैपिटल साइड पे दिखाया और रेवेन्यू इनकम को P&L में दिखाया है. तो कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रहता है वो यूजुअली बैलेंस शीट में जाता है, वी आर अवेयर अबाउट इट. बट जो रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस रहता है दैट इज़ प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन P&L. इट इज़ नॉट मिसलेटेड कि कैपिटल का आइटम रेवेन्यू में दिखा रहा है और रेवेन्यू का आइटम कैपिटल में दिखा रहा है. सो द ऑडिटर शुड बी अलर्ट ड्यूरिंग सच थिंग. नेक्स्ट, ही मस्ट पुट अ चेक ऑन द एरर्स गोइंग अननोटिस्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो there are many different kinds of errors. Firstly, that is mathematical error, casting error, totaling error. तो वो सब एरर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है यानी कंपनी कर रहा है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रीकैलकुलेट एंड रीपरफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू चेक कि कोई गलती नहीं हुई है ऑर्गेनाइजेशन से ये मेंटेन करने में. Now let us learn the basic difference between some important terms where you can get a little confused. So let's clearly distinguish between them. Now, bookkeeping. Bookkeeping is nothing but first cash book and other books. This is basically about talking when before there was no technology introduced for accounting purpose. So before it was usually called as bookkeeping. Now bookkeeping में क्या रहता था पहले कि कैश बुक रहता था और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहती थी, which is nothing but the ledger book. So these books should be properly maintained by the auditor. Now, so it should be properly maintained by the company. Second, posting of entries. Posting of entries where in the ledger book, कास्टिंग एंड टोटलिंग, मतलब कोई बैलेंस जो है, मतलब सपोज 260 है तो 260 को 206 नहीं लिखा है, दैट इज़ कास्टिंग एरर्स. टोटलिंग एरर्स का क्या है कि बैलेंस का टोटल जो रहता है, तो सपोज जर्नल एंट्रीज कर रखी है और वी आर टेकिंग इट टू अ नेक्स्ट पेज, तो हम कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं ऑन द प्रीवियस पेज.
तो वो जो एरर रहता वहाँ पे जो टोटलिंग रहती है वहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इन कैरी फॉरवर्डिंग. सो दिस इज व्हाट अ टोटलिंग मिस्टेक विच शुड बी अवॉइडेड. So in bookkeeping, there must be cash book, other books, posting of entries, casting and totaling, and balancing of the ledger. It is very important that a ledger must be tallied in order to tally the balance sheet and the books of accounts. Secondly, if we talk about accountancy that we usually do nowadays, that is what it includes of trial balance, where all the transactions of the organizations are given. Now, उसमें क्या क्या रहता है बेसिकली अ P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ऑल्सो कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ डेज इज मैंडेटरी बाई लॉ. सेकेंड, थर्ड, द एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, दैट इज द बैंक रिकन्सिलेशन जो रहता है कि कोई ट्रांजेक्शन छूट गए हो बैंक में आने के लिए. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि एक अलग से एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का रिकॉर्ड्स रहता है. सो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स दैट ऑल्सो, एंड ऑल्सो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट कि कोई ट्रांजैक्शंस लास्ट ईयर थे, लाइक फॉर एग्जांपल बैड डेट्स जो कवर नहीं हुए थे, क्या वो ये साल कवर हुए हैं कि नहीं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके रिजल्ट्स आए हैं और नॉट, एंड इट शुड बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now talking about auditing, as I said, auditing is what checking. Earlier क्या रहता था कि ऑडिटर आता था कंपनी में, वो पूछता था टू द स्टाफ एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और वो चेक करता था बुक्स ऑफ अकाउंट से कि वो सेम है कि नहीं. बट नाउअडेज व्हाट ही डज, बिकॉज एवरीथिंग इज सेव्ड ऑन द क्लाउड, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर टू हैव स्किल्ड नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी that is going on in today's era. Now, what he does checking the work done by the organization, ascertaining results of what ki after checking the entire organization, he will give a report to the management कि ऑडिटर ने क्या क्या किया है. इफ़ ही फाउंड एनी डेफिशिएंसीज कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे उससे, सो व्हाट ही विल डू इज़ कि ही विल रिपोर्ट दिस इन द रिपोर्ट. एज यू कैन सी इन द इमेज कि एक ऑडिटर खड़ा है एक नोटपैड के साथ, ही इज़ नोटिंग आउट वॉट एवर थिंग्स दैट ही गॉट. मतलब एक उसने एक लिस्ट तैयार कर रखी होगी कि क्या क्या चेक करना है, उसमें क्या क्या चेक करना आएगा. सो ही विल वेरीफाई एंड पुट अ टिक ऑन इट दैट वो सही है कि नहीं. आफ्टर दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो P&L अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं. मतलब दे मे बी वेरी हाई चांसेस कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो फ्रॉड करने के लिए या टैक्स इवेड करने के लिए डमी एंट्रीज करते हैं, मतलब फेक एंट्रीज करते हैं. सो द ऑडिटर मस्ट मेक श्योर कि ये जो एंट्रीज है, स्पेशली वेजेस एंड वर्कर्स सैलरीज जो है, तो एक्चुअली है कि नहीं इन रियल लाइफ, रियल ऑर्गेनाइजेशन में. द ऑडिटर कैन गो एंड मेक अ सरप्राइज विजिट टू द कंपनी एंड चेक कि ये सही से है कि नहीं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन, mostly students get confused between auditing and investigation. Auditing is what कि तुम जाओ without thinking in your mind कि कोई fraud हो सकता है. बट जब ऑडिटर को ऐसा लगे कि यार ये मैनेजमेंट जो है it is trying to fool us, so what he will do is he will start investigating. Now investigating is what again a complete different professional skill for which he requires highly required techniques to obtain further evidence. So this is what investigation is, in-depth checks or a check on accounts. कि इन डेप्थ चेक ऑफ अकाउंट्स में क्या रहता है कि तो ऑडिटर जो है वो पूरे अकाउंट्स चेक करता है, और हाईली द कैश ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स जो है, वैल्यूइंग ऑफ द स्टॉक, तो ये सब चीज़ों का क्या अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्रॉड्स जो हैं इसी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. मैटर्स नॉट प्योरली रिलेटिंग टू अकाउंट्स. इन्वेस्टिगेशन जो रहता है, इट इज़ नॉट जस्ट चेकिंग अकाउंट्स, मतलब इट इज़ नॉट चेकिंग अकाउंट्स. वो जो अगर वो अकाउंट्स चेक कर रहा है देन दैट इज़ ऑडिटिंग. सो इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट the checking of accounts but in-depth checking of accounts of those
ट्रांजैक्शंस विच आर हाईली चांसेस कि यहाँ पे फ्रॉड एंड एरर हो सकते हैं. नाउ ऑडिटिंग का जो है वो साल में एक बार होना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का क्या है, अगर एक बार एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया देन इट इज़ मेजरली टू गो फॉर 3 to 5 years. Okay, so now that we know what is auditing, the difference between few basic terms, auditing, bookkeeping, investigation, accounting, everything, right? So as we know कि हर चीज के अगर benefits होते तो उसके corresponding disadvantages भी रहते हैं. Same for audit. Audit also has some benefits as well as disadvantages. Now we will be discussing about what are the limitations that organizations face while they do auditing in their organization. The very first point is small business के लिए suitable नहीं है. See, small businesses में क्या रहता है कि उन लोगों के transactions बहुत कम रहते हैं, due to which they do not require the work of audit. ऑडिट इज एज आई सेड कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रहता है वो कोई बाहर वाला आके चेक करता है. सो बेसिकली अगर हमारे ट्रांजैक्शंस ही कम रहते हैं सो इट इज इनफ कि जो ओनर है जो अकाउंटेंट है वो दोनों मिलके चेक कर ले, दैट इज मोर देन इनफ. सो दे डू नॉट रिक्वायर ऑडिटिंग. Second, it is expensive. Now we can say it is actually by law that auditing is only done by a professional chartered accountant, right? So because it is done by a professional person, so he requires to be paid highly, which is not affordable by small organizations. So this is the reason why small organizations cannot afford audit. Third, disturbance of regular work. While as I have shown you in the PPT, that when an auditor comes into an organization premises, he requires the staff of the premises to show him the books of accounts, the vouchers, and provide explanation which the auditor requires. So due to which what कि जो organization में काम चल रहा है तो वो disturb रहता है. Fourth, influence of managerial person. Now managerial personnel कौन रहता है? Basically the management person. Now एक organization में management hires the auditor. He is the one जो auditor को appoint करता है कि आप मेरी organization का audit कर. So now what happens is अगर एक auditor is appointed in an organization, so what he is under his influence कि जैसा मैनेजमेंट बोलेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा. He cannot go against it. Yeah, if he feels that somewhere it is wrong, he can quit the audit engagement. Fifth, postmortem of examination of figures. Auditing is nothing but postmortem examination of figures. That is कि जो figures दिए होते हैं उसको check करना पड़ता है, verify करना पड़ता है with actual transactions कि ये सही है कि नहीं. But if we see in small organization, it is not required. अगर वो लोग कर भी ले then it is beneficial only for future references. Six, lack of assurance of correctness of accounts. When an auditor जब अपना report देता है management को of the work done by him, he expresses an opinion of true and fair view, not true and correct view. True and correct is what? That is 100% accuracy. While true and fair views, it is fair enough but not exactly correct. It is not correct up to 100%. The reason being कि कुछ organizations में बहुत ज़्यादा transaction रहता है, so auditor क्या करता है, sampling basis पे उसको check करता है randomly. मतलब छोटे छोटे samples randomly उठाता है, उस transactions को ही देखता है. This is random sampling. So for this he expresses a true and fair view and not true and correct view. For that reason they are saying that the correctness and the accuracy of the work done by the auditor cannot be correct always. 7, possibility of fraud and error. Sometimes what happens is the management and the employees of the organization वो लोग fraud commit करते हैं. Now when the management and employees of the organization itself commits fraud,
there are very less chances for an auditor to detect such fraud. Yeah, there may be chances कि कोई error हो सकता है while the auditor checks the accounts, कोई voucher छूट गया, कोई mathematical mistakes, but अगर fraud हो तो वो इतना systematically decide करके बना हुआ रहता है कि the auditor cannot detect that there is some fraud. So the auditor must basically use professional skepticism, that is nothing but intelligence level, कि ही शुड मेक श्योर कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में हो और वो अननोटिस जा रहा है. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिसीव्ड. बेसिकली जब एक ऑडिटर आता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए, सो व्हाट ही डज इज ही रिक्वायर्स अ पर्सन कि वो आके उसको एक्सप्लेनेशन दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे. Sometimes what the staff make excuses is, no, we are not giving you books of accounts. Yeah, what they do is they do not give proper explanation, due to which the auditor cannot perform his duty as required by law or as expected by the management. So this is a bad factor over here, that he does not obtain the information that he requires to complete a particular audit. 9. Dependence on experts' opinion. Now suppose what happens is, एक ऑडिटर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए. नाउ इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है. नाउ दिस वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इज क्रिएटेड अगेन बाय सम आउटसाइड पार्टी, नॉट द ऑडिटर. नाउ ड्यू टू दिस रीजन दिस सर्टिफिकेट इज क्रिएटेड बाय एन आउटसाइड पार्टी, दैट इज एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन, कि वो अपना ओपिनियन देता है ऑडिटर्स की रिपोर्ट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे कि ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही है. एक सील रहता है, एक स्टैम्प जैसा होता है उसमें. सो दिस इज व्हाट कि द ऑडिटर आल्सो रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट्स ओपिनियन. नाउ देयर मे बी चांसेस कि वो जो एक्सपर्ट है दैट मे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन विद द मैनेजमेंट. इट मे क्रिएट सम इन्फ्लुएंस ड्यू टू विच ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट वो एक्सपर्ट को बोल सकता है कि यू डू नॉट प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू दी ऑडिटर, एंड कुछ भी हो जाए, गिव अ फेक रिपोर्ट इन द सर्टिफिकेट, एंड इट मे बी मेनी चांसेस कि वो सर्टिफिकेट भी फेक हो सकता है. सो दिस इज अगेन अ लिमिटेशन इन ऑडिटिंग. लास्टली, ऑडिटर्स प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज इज क्या? बायसनेस, पार्शियली. दे मे बी चांसेस कि अगर ऑडिटर यूजुअली बाय लॉ जब ऑडिटर अपॉइंट करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. देयर आर मेनी प्रोविजंस जहां पे एक ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी रिलेशन, एनी काइंड ऑफ कोई क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए उसका ऑर्गेनाइजेशन में. रीजन बीइंग कि अगर कोई रहा उसका रिलेटिव तो क्या होता है, रिलेटिव उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम मेरे रिलेटिव ही हो तो प्लीज थोड़ा देख लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, प्लीज कुछ फॉल्स ओपिनियन मत देना रिपोर्ट में. सो दिस इज व्हाट द ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी एज रिक्वायर्ड. तो this is that what they're trying to tell कि auditor's prejudice is affected. So as per law usually नहीं होता है, but sometimes the auditor may give a prejudiced opinion on the report that is given to the management. Now looking forward to the difference between auditing and accounting. We are familiar with the term auditing as well as accounting. अब सीखते इन दोनों के बीच का differences क्या है. Starting with the basic thing is meaning. Accounting is writing books of accounts, while auditing is checking the correctness of accounts that have been already prepared. Now see, we already know that accounting में हमने क्या किया है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं. वेल ऑडिटिंग इज व्हाट दैट इज स्पेसिफिक पर्सन हु इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो आके जो अकाउंटेंट ने एंट्रीज बनाई है, जो रिपोर्ट्स बनाए हैं, प्रिपेयर किया है, उसको चेक करें. Second is objective. Accounting records each and every transaction, while auditing it is correct. It checks the correctness, completeness, and fraud and error. Now the main objective of accounting is what? To record each and every transaction. कोई भी transaction छूटना नहीं चाहिए. While auditing का main objective क्या है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वो सही से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, सही लेजर में पोस्ट किया है कि नहीं, ऑल्सो टू डिटेक्ट कि कोई फ्रॉड या एरर नहीं हो रहा है. थर्डली द डेजिग्नेशन. अकाउंटिंग इज डन बाय एन अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग इज डन बाय एन ऑडिटर. फोर्थ, coming to the qualification,
Accounting करने के लिए to be a chartered accountant is not necessary, but for doing auditing a person is required by Institute of Chartered Accountants Act to be a qualified chartered accountant. Now the responsibility of accountant is accounting is prepared within with well established and normally accepted accounting principles. System of writing books of accounts may differ. अकाउंटिंग में द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं. जो पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं वो हर साल सेम होनी चाहिए, इट शुड नॉट डिफर. जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल प्रॉपरली हम मेंटेन करें, द रिकॉर्ड शुड बी केप्ट प्रॉपरली इन सेफ प्लेस. वेल ऑडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इट इज प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एज पर जनरली अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. इट इज अ गाइडलाइन और नॉर्म्स यू कैन से. Auditor tries to formulate system which is best suited to a business unit. जब ऑडिटर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है, he prepares a particular audit plan. उस प्लान के हिसाब से he will check the transactions and complete all the auditing stuff which is there of the particular business unit. हर बिजनेस यूनिट का अलग अलग रहता है, तो हर बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग ऑडिट प्लान बनेगा. Now the responsibility of reporting responsibility. Accountant is not responsible to the director, while the auditor of the organization is responsible to the owner of business. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंटेंट अपनी ही फर्म का अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, while ऑडिटर क्या होता है वो दूसरों की फर्म में जाके ऑडिट करता है. He is not the employee of the organization itself, he is an outsider to the organization. Step Accounting is the first step, while auditing is the next step. That is, accounting पहले होता है, accounting कर लेते हैं हम, उसके बाद हम auditing करते हैं. Auditing क्योंकि हम basically accounting entries और transactions है उसका ही करते हैं. That is why. Lastly, work. Accounting gets completed and books of accounts ends, while auditing gets completed when accounting ends. दिस इज वॉट कि जब अकाउंटिंग कंप्लीट कब होती है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं. लाइक हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, लेक्चर्स खत्म कर देते हैं बनाना, उसके बाद द अकाउंटिंग इज कंप्लीटेड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑडिटिंग इज व्हेन कंप्लीटेड व्हेन जो हमारे पास जब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी होते हैं, जब उसका ऑडिट खत्म हो जाता है, देन यू कैन से ऑडिटिंग इज बीन कंप्लीटेड. Now, to remember these all points, I have given some small abbreviations over here to remember. First, we'll break these points into MOD, that is meaning, objective, designation. Then, break it into another 2 points, that is QR, qualification and responsibility. Another 3 points, responsibility, step and work. So, MOD, QR, RSW. Again, I'm repeating MOD, QR, RSW.